اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کی تخلیق کی، اس وقت سے اللہ نے اس سال کو 12 مہینوں کے اندر تقسیم کیا. اسی وجہ سے اسلامی مہینے ہو یا انگریزی مہینے ہو یا دیسی مہینے ہو، وہ سارے 12 مہینوں کے اندر ہی ہوتے ہیں. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، یعنی ان کا بڑا ہی احترام ہے، بڑی ان کی عزت ہے، بڑی ان کی عظمت ہے. ان 4 مہینوں میں سے کون کون سے حرمت والے ہیں؟ پہلا نمبر پر ذی قعدہ جو پچھلا مہینہ گزر چکا ہے، اور دوسرے نمبر پر ذی الحجہ جو کہ یہ مہینہ گزر رہا ہے، جو جا رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر محرم کا جو کہ ابھی آنے والا ہے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے جی حرمت والے، ان کا احترام یہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب جو کہ مسلمان نہیں تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں تھے، وہ لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. دیکھا نا، جنگ ہو رہی ہے اور لڑائی کے دوران اگر یہ مہینے شروع ہو جاتے اپنی جنگ کو روک دیتے. ان مہینوں میں اپنی جنگ، فتنہ، فساد، لڑائی، آپس کے لڑائیاں، وہ سارا کچھ ختم کر دیتے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، وہ کافر ہو کر، مشرک ہو کر ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. اور آج مسلمان کو احترام کو تو چھوڑ دیں جی، کسی مسلمان سے صرف یہ پوچھ کے دیکھیں کہ یار رب نے کوئی حرمت والے مہینے بھی بنائے، صرف اسے یہ سوال کر کے دیکھ لیں. آگے وہ یوں دیکھے گا جیسے آپ نے پتہ نہیں کوئی اس کے ایٹم بم بنانے کا اس سے طریقہ پوچھ لیا. تو کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے. ان کا احترام کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری اور فرض اور لازم ہے کہ سال کے ہر مہینے میں لڑائی، فتنہ، فساد، جنگ، جدال یہ منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر یہ احترام کرنا یہ ضروری ہے کہ ان مہینوں میں جو ہی شروع ہو جائے پھر فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا ختم کر دے. حتیٰ کہ جو اصل اسلامی جہاد ہے، اگر کفار کی طرف سے حملہ نہیں کیا جا رہا نا تو ان مہینوں میں جہاد بھی جو ہے نا روک دیا جاتا تھا، اسے رک جایا جاتا تھا کہ حرمت والے مہینے، کیونکہ ان مہینوں میں حج کا قافلے آنے جانے شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا. اور ان 4 مہینوں میں سے بھی یہ والے جو 10 دن ہیں نا، جو ذوالحج کے پہلے 10 دن، یہ تو بڑی ہی عظمت والے اور بڑی ہی فضیلت والے، کیونکہ ان دنوں کے بارے میں خالق کائنات نے قسم اٹھائی ہے، قسم ذکر فرمائی. والفجر 30ویں پارے کی صورت ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی. کون سی فجر؟ جو 10 ذوالحج کی، یعنی عید والے دن کی فجر. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. وہ 10 راتیں کون سی ہیں جی؟ جو ہم یہ گزار رہے ہیں، ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں. واللیل اذا والشفع والوتر، جفت کی قسم اور طاق کی قسم. جفت یعنی یہ جو دو دن، اور طاق یعنی جو ایک دن ہوتا ہے. تو ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی قسم اللہ جب ذکر فرمائے، سوچے کیا مقام و مرتبہ ہو، سوچے ان کی عظمت اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتے ہیں یہ دن. اسی وجہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، 969 حدیث کا نمبر ہے. محبوب کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل وہ تمام دنوں میں نیک عمل سے زیادہ افضل اور فضیلت رکھتا ہے. مطلب اس کا کیا ہے جی؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ عام دنوں میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے، لیکن ان دنوں میں جو آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مقام، مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، بہت زیادہ ہے. عام دنوں میں آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے. لیکن ان 10 دنوں میں اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا اجر ان عام دنوں سے بڑھ کے. آپ عام دنوں میں نفلی روزہ رکھتے ہیں، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. لیکن ان دنوں میں اگر آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں تو اس دن کے روزے کا ثواب عام دنوں کے نفلی روزے کے ثواب سے بڑھ کے. ہر نیک عمل کو آپ یوں ہی لگا رہے ہیں. آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں عام دنوں میں، ٹھیک ہے، اجر ہے، مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی اجر ہے. لیکن وہی صدقہ اگر آپ ان دنوں میں کرتے ہیں تو اس صدقے کا اجر بھی عام دنوں سے بڑھ کے. یہ مطلب ہے جی کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں کیا گیا عمل وہ عام دنوں کے عمل سے بڑھ کے زیادہ محبوب ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اچھا، وجہ سنیں کہ آخر اللہ رب العالمین نے سارے سال کے دنوں میں سے صرف ان 10 دنوں کو فضیلت کیوں دی ہے؟ کیوں اللہ کا اسم و ذکر فرما رہے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر؟ یہ ان 10 دنوں کی عظمت کیوں ہے؟
क्यों इन 10 दिनों की फजीलत बार बार कहीं जिक्र कस्में जिक्र की जा रही है, कहीं अल्लाह के महबूब हदीसें बयान फरमा रहे हैं कि इन दिनों का अमल वो अफजल है। वजह इसकी क्या है जी? वजह तो वजह से सुनिएगा। क्योंकि हम जी अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, रब के नज़दीक होते हैं, रब की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, लेकिन ये तमाम इबादत जो है ना एक ही दिन में कभी जमा नहीं होती। यानी कि मसलन जी बाकी दिन जो हज होता है जी, हज होता है, हज सिर्फ इन्हीं दिनों में, और कुर्बानी बाकी दिनों में होती है, इन्हीं दिनों में कुर्बानी। लेकिन ये जो दिन है ना जी 10 दिन, इन 10 दिनों में सारी की सारी इबादत इकट्ठी हो जाती है। हज भी इन 10 दिनों में होता है जी, 8 ज़ुल्हज को हज शुरू हो जाना है इंशाल्लाह। कुर्बानी भी जो है फर्ज वही भी इन 10 दिनों में, रोजा 9 ज़ुल्हज का रखा जाता है, और ज़कात वो भी अदा की जाती है, नमाजें ऑलरेडी वो दिन में 5 वक्त में मुसलमान पढ़ता है। यानी तमाम जो मेजर इबादत है ना, जो टॉप की जो इबादत है, वो सारी की सारी इबादत इन 10 दिनों के अंदर जमा हो जाती है। इस वजह से अल्लाह कभी कस्में जिक्र फरमा रहे हैं और महबूब जो है इन दिनों की फजीलत बयान फरमा रहे हैं। तो इन 10 दिनों को जी ज़ाया ना करें, ये गुजर ही जाने। इन 10 दिनों को ज़ाया ना करें, इन 10 दिनों को कीमती बनाएं। वो कैसे कीमती बना सकते हैं वो मैं आगे अर्ज करता हूँ। ये जो 10 दिन, ये अशरा ज़ुल्हज्जा जो कि गुजर है, ये हमें कौन सी याद ताज़ा करवाता है? क्या हमारे ज़हन में याद आती है जी? बोले जी, किस चीज़ की, किस हस्ती की याद हमारे ज़हनों में आती है? हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह, अल्लाह का खलील, इमाम अहद व वफा। कैसा यार अहद और कैसी वफादारी कि जिसकी वफाओं का तज़किरा अल्लाह कुरान में फरमा रहे, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। ये इसका तर्जुमा जी मैं उर्दू जो करांगा तानू मज़ा नहीं आना, पंजाबी जो करांगा फिर मज़ा आना। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और इब्राहीम तो साडा ओ यार है, ओ दोस्त है जिन्हें साडे नाल वफा की है। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, कैसा यार मफहूम है? हम देखिए नमाज पढ़ रहे हैं, रब की इबादत कर रहे हैं, पता नहीं वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल भी है या कि नहीं। हुस्न ज़ान होना चाहिए इंसान को, यही होना चाहिए कि मेरी इबादत कबूल है, लेकिन रब की तरफ से कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई मिलता, कोई सर्टिफिकेट रब की तरफ से आता है। लेकिन यार ये रब का खलील और इमाम अहद व वफा कितनी अजीम शख्सियत है कि इसकी एक एक इबादत के ऊपर रब के सर्टिफिकेट उतरे। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा व इज़ बतला इब्राहीम रब्बुहु, कि जब जिस इम्तिहान में रब ने इब्राहीम को आजमाया, फ़अतम्महुन्ना, तो इब्राहीम उस इम्तिहान में 100/100 नंबर लेके कामयाब हुए। यह है जी फ़अतम्महुन्ना का माना कि अल्लाह ने अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कुर्बानियों की जी इंतहा, आम तो सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो जानवर की कुर्बानी जानते हैं ना, लेकिन इब्राहीम कुर्बानियों का दूसरा नाम है। इसी वजह से कुरान में बार बार अल्लाह इब्राहीम वज़कुर फिल किताब इब्राहीम सलामुन अला इब्राहीम, ओ इब्राहीम पर रब की सलामती हो, महबूब वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, ये अपनी जो है ना कुरान में अपनी जुबान पर इब्राहीम के तज़किरे कीजिए। इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, इब्राहीम तो एक उम्मत था, एक पेशवा था। क्यों जी? इब्राहीम एक कुर्बानियों की दास्तान का नाम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर छोड़ना पड़ा। सर छोड़ दिया, कोई बहाना नहीं लगाया। हमारे यहाँ जी नमाज सिर्फ नमाज के लिए आना पड़े ना, आप 100 बहाने लाई दे, वो यार उठिया नहीं जाता, नींद नहीं पूरी होती, रात छोटियां। ये रब का खलील और रब घर अपना घर छोड़ना पड़ा, रब के लिए घर छोड़ दिया, जला वतनी की जिंदगी गुजारी है। और इस रब के खलील को वालिदैन से जुदा होना पड़ा, छोड़ दिया जी, वालिदैन को छोड़ दिया। बाप जो है ना वो दुश्मन बन गया, कहते जी अर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया इब्राहीम लइन लम तंतही, अगर तू अपनी इस दावत तौहीद से बात ना आया ना, अर्जुमन्नक, मैं पत्थर मार मार के तुझे रजम करूंगा। कौन कह रहा जी? अल्लाह। ये ऐसे नहीं अल्लाह ने कह दिया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि रब ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया। भाई पीछे कुर्बानियां बहुत है, कुर्बानियों की एक दास्तान है यार। वालिदैन को छोड़ना पड़ा, इब्राहीम ने दूसरी बात नहीं की, फौरन वालिदैन को छोड़ दिया, और उसके बाद कुंबा छोड़ना पड़ गया जी, कबीला छोड़ना पड़ गया, अपने मुल्क छोड़ना पड़ गया, जला वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ गई। फ़अतम्महुन्ना, रब कहते हैं जी इब्राहीम उस इम्तिहान में, उस आजमाइश में 100/100 नंबर लिए, एक थोड़े नहीं 100/100 नंबर लेकर कामयाब हुआ। और यार इससे बढ़ के चलो वालिदैन को छोड़ना, इलाके को छोड़ना, अपने कुंबे और कबीले को छोड़ना आसान है, लेकिन अपनी बीवी बच्चों को छोड़ना सौखा है जी? दसो जी बच्चे आ रहे हो और बीवियां आ रहे हो, दसो तुझे तो कहने अभी चंद ताड़ी तोड़ के लियावांगे, हम जो है ना पता नहीं क्या से क्या करेंगे। रब के खलील को जब आर्डर होता है क्या है, इब्राहीम अपने बीवी और बच्चे को लो और फुला जो है ना बियाबान इलाके में छोड़कर आ जाओ। इब्राहीम जो कि कुर्बानियों की दास्तान का नाम है, दूसरी बात नहीं की,
रब्बाना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, कि या रब मैं अपनी औलाद को तेरे हुक्म के ऊपर, अपनी ज़ुर्रियत को या अल्लाह तेरे हुक्म के मुताबिक बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन, उस बस्ती में छोड़ के आ गया हूँ जहाँ पर खेती नहीं होती, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे घर के करीब। या अल्लाह ये सारी कुर्बानियाँ तेरे लिए। और यार हमने तो सिर्फ जो है ना वो कुर्बानी, सिर्फ बच्चे की कुर्बानी को याद रखा, ये इब्राहिम की सारी जिंदगी और जिंदगी का एक एक लम्हा वो कुर्बानियों से भरपूर है। और जब शैतान वसवसा डालने के लिए आया, और इब्राहिम बुढ़ापे में जाकर तूने जो है ना रब से दुआएं मांग मांग कर, मन्नतें मांग मांग कर बेटा लिया, अब एक ख्वाब की बुनियाद पर तो उसको कुर्बान करने के लिए जा रहा है। इब्राहिम सोच रहा है कोई देखना, फिर नजरसानी कर ला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कंकरियां उठाते हैं, कंकरियां मारते हैं, इसी वजह से पर शैतान को कंकरियां मारी दी। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि ये कुर्बानी और ये अपने बेटे के ऊपर, गले के ऊपर छुरी चलाना, ये मैं कौन सा अपने हुक्म से कर रहा हूँ? किसके हुक्म से कर रहा हूँ जी? अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। आप क्या समझते सुख है? आज आप लोगों को कहा जाए यार अपना बच्चा जो ना दीन के लिए वक्फ कर दो, वो जी खाएगा कितों? एक कमाएगा, ये दर बदर ठोकरा खाएगा। आज हम अपनी औलाद को दीन के लिए वक्फ करने के लिए भी 1000 बार सोचते हैं, मदरसे में दाखिल कराने के लिए 1000 बार सोचते हैं। और यार कैसा जिगरा है इस रब के खलील का कि जिसको आर्डर नहीं, बस ख्वाब आई है, इन्नी अराफिल मनाम, सिर्फ ख्वाब आई है कि मैं अपने बच्चे के गले के ऊपर छुरी चला रहा हूं। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए रब का खलील जो है ना अपने बेटे के गले के ऊपर छुरी चलाने के लिए तैयार हो गया। तो इसी वजह से अल्लाह बार बार तज़किरा करते हैं, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम सलामुन अला इब्राहीम वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला मा काना इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया। लोगों सुन लो, इब्राहिम यहूदी भी नहीं थे, नसरानी भी नहीं थे, वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा, वो तो सबसे कट कर यकसू होकर रब के फरमा बरदार थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, ना वो मुशरिकों में से थे। आज हम देखें जी अहले तौहीद है, मुवहिद है, हम अपने फख्र महसूस करते हैं कि जी असी अहले तौहीद, असी मुशरिक नहीं, शिरक नहीं करते। और यार उस शख्सियत की अजमत के क्या कहने कि जिसकी अजमत के ऊपर, जिसकी तौहीद के ऊपर रब अपने सर्टिफिकेट जारी कर दे, क्या महबूब वलम यकुम मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम जो थे ना, जो आपके अबाओ अजदाद, आपके जद्दे अमजद जो थे, वलम यकुम मिनल मुशरिकीन, ये मुशरिक नहीं थे, ये शिरक नहीं किया करते थे, ना अपने नफ्स के बारे में उन्होंने कभी शिरक किया। जब भी उनको रब की तरफ से बुलावा आया, दूसरी बात नहीं की, उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार हो गए। तो ये जी 10 दिन ये हमें याद दिलाते हैं उस अल्लाह के खलील की कि जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, और आज जो है क़यामत तक उनका नाम लिया जा रहा है, उनकी सुन्नत के ऊपर अमल किया जा रहा है। हत्ता कि हमारे महबूब को हुक्म होता है कि महबूब वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आप भी मिल्लत इब्राहीम की पैरवी कीजिए। हमें हुक्म है अपने नबी की पैरवी कीजिए, और नबी का हुक्म है जी इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी कीजिए। ऐसा अजीम नाम है, ऐसा अजीम कुर्बानियों की दास्तान है। तो बहरहाल जी ये 10 दिन हमें याद दिलाते हैं इब्राहीम कि जब उन्होंने रब के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो तुहानू सानू भी चाहिए कि अगर रब के दीन के लिए कुर्बानी देनी पड़ जाए, रब के दीन के लिए अपना कुंबा, अपना कबीला, अपना घर बार और अपना खानदान, अपने बीवी बच्चों से कटना पड़ जाए रब के तौहीद के लिए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को याद रखना है कि उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया था। अपना घर, अपना कुंबा, कबीला, अपने वालिदैन, अपने अजीज, अपने रिश्तेदार, अपना इलाका, हत्ता कि बीवी बच्चे छोड़ने पड़े तो छोड़ दिए, रब की तौहीद के ऊपर आंच नहीं आने दी। यही मेरा और आपका उस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से दरस है। तो बहरहाल जी इन अयाम आप बढ़ते हैं जी, ये अजीम शान जो दिन है, ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में हमने क्या अमल करना होता है, कौन कौन से अमाल हैं जो हमें करने जरूरी है, तभी ही हमारे ये 10 दिन जो है ना ये कीमती बन सकते हैं। वरना इन्होंने क्यों गुजर जाना है, किसी के लिए ठहरना नहीं है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। लेकिन अगर हम इन दिनों के अंदर ये अमाल कर लेंगे तो ये दिन हमारे लिए कीमती बन जाएंगे। और पता नहीं जिंदगी का रमजान में तो हम कहते हैं ना कि पता नहीं अगला रोजे नसीब होनी है कि नहीं। यार ये 10 दिनों के हमें क्यों नहीं ये बात की जा सकती कि यार अगली मरतबा जब अशरा ज़ुल्हज आएगा, कुर्बानी की ईद आएगी, पता नहीं साढ़े चुप किन्ने होना था किन्ने नहीं होना। तो जैसे रमजान को हम कीमती बनाते हैं, इन 10 दिनों को भी हम कीमती बनाए। सबसे पहला जी अमल, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, सही बुखारी 969 हदीस का नंबर है, उनके बारे में आता है जो ही ज़ुल्हज का चांद नजर आ जाता है तो वो बाजारों के अंदर निकल जाया करते, बाजार में जा रहे हैं कुछ चीज लेने के लिए या कोई जरूरत के तहत जा रहे हैं, तो जुबान के ऊपर क्या है जी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह की तौहीद के तराने हैं। तो ये हमारे लिए दरस है कि इन 10 दिनों में हमने इन तकबीरात का एहतमाम करना है, ज्यादा से ज्यादा। बाजार में निकलते हैं, बाजार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई अपनी जरूरत के लिए जा रहे हैं, तो अपनी जुबान के ऊपर ये कलमा तौहीद ये जो है जारी रखें। पढ़ लो जी फिर एक बारी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये पहला अमल है जो इन 10 दिनों के अंदर हमने करना है। और उसके बाद मुस्नद अहमद की हदीस है 5446 54 हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो 10 दिन अशरातुल हज, ये बड़ा ही अजमतों वाला है, बड़ी फजीलतों वाला है। इन 10 दिनों में किया गया अमल अल्लाह के नजदीक बड़ा ही महबूब है, बड़ा ही प्यारा है। तो लिहाजा फअक्सिरू फीहिन्ना, इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ मिनत तहलील, तहलील पढ़ो, और वह तकबीर, तकबीर पढ़ो, और वह तहमीद, और तहमीद पढ़ो। तहलील क्या होता है जी? तहलील क्या होती है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तहलील किसको कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। तकबीर किसको कहते हैं? अल्लाहु अकबर पढ़ना। और तहमीद किसको कहते हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तो ये जो है ना तस्बीह, अल्लाहु अकबर तकबीर होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह ये तहलील होगी, वल्लाहु अकबर फिर तकबीर आ गई, वलिल्लाहिल हम्द ये तहमीद होगी। तो इस तकबीर के अंदर सारी की सारी चीजें जमा है जो महबूब ने हमें तालीम दी थी कि इन दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तहलील, तकबीर, तहमीद बयान करो। तो उस तकबीर, तहमीद, तहलील सारी की सारी चीजें इस अल्लाह के तौहीद के तराने के अंदर जमा है। तो इसलिए इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ उठते बैठते आते जाते जो है ना जिक्र अज़कार करते हुए जहां पर बाकी जिक्र करते हैं, ये भी साथ इन 10 दिनों के अंदर जिक्र करें। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये 2 काम हो गए जी। एक तो हमने तकबीरात पढ़नी है और दूसरा ये तहलील, तकबीर और तहमीद। तीसरे नंबर पर जी जो इन 10 दिनों में जरूरी काम है जो हमें करना चाहिए और हम इन 10 दिनों के अंदर वो काम करके अपने दिनों को कीमती बना सकते हैं, वह है कि नमाजों की पाबंदी। नमाजों की पाबंदी आम दिनों में भी लाजम और फर्ज है, लेकिन इन 10 दिनों के अंदर वो और ज्यादा उनकी अहमियत बढ़ जाती है। क्योंकि सही बुखारी की हदीस है 6502 उस हदीस का नंबर है। ये हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी। अल्लाह ताला फरमा रहे कि ऐ महबूब अपनी उम्मत को बता दे कि मेरा बंदा सबसे मेरे करीब उस वक्त होता है जब वो मेरा बंदा फराइज की पाबंदी करता है। फराइज यानी जड़ी नमाजा रब ने साढ़े ते फर्ज की थी, जो ज़कात रब ने साढ़े ते फर्ज की थी, जो हज अगर इस्तिताअत है रब ने हमारे ऊपर फर्ज की वो हम करते हैं। कुर्बानी अगर इंसान के पास इस्तिताअत है तो वो कुर्बानी इंसान करता है तो रब के करीब होता है। तो रब क्या फरमाते हैं कि महबूब मैं अपने बंदों को बताओ, अपनी उम्मत वालों को, कि मेरा बंदा फराइज के जरिए मेरे सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। और फिर जब वो नफलों की भी साथ पाबंदी करता है, तो जी जब हम फर्ज पढ़ेंगे तो रब के करीब हो जाएंगे, और जब साथ नफलों की भी पाबंदी करेंगे, अल्लाह फरमाते हैं जब बंदा नफल पढ़ता है और इतने नफल पढ़ के बंदा मेरे करीब होकर फिर मेरी मोहब्बत का जरिया बन जाता है, और ऐसे फिर मैं उसके साथ मोहब्बत करने लग जाता हूँ, फिर वो बंदा मेरा महबूब बन जाता है। अल्लाह अकबर। यार सानू आज ना रब ना प्यार है जी नहीं। आप जितने इस वक्त बैठे हैं मैं गारंटी देता हूँ मिंबर पे खड़े होकर आप सबको रब के साथ प्यार है, और अपना प्यार है तो अपना कारोबार छड़ के अपना तिजारत छड़ के रब के घर में बैठे हुए हो ना, और इतने नाश्ते तो कुछ नहीं मिलना। ये रब की मोहब्बत है। लेकिन क्या है यार कि अगर रब हमें ये कह दे कि तू मेरा महबूब है, वो कैसे होगा जी? जब हम नफलों की पाबंदी करेंगे, जब हम सुन्नतों को भी साथ पढ़ेंगे। यानी फर्ज पढ़े थे कार रुके नहीं, फर्ज भी है, फर्ज के साथ साथ मुवाफल भी है हर काम में। यानी फर्ज रोजे साथ साथ नफली रोजों का भी एहतमाम, फर्ज सदका है यानी ज़कात अदा करते हैं तो साथ साथ नफली सदके का भी एहतमाम किया जाए। हम फर्ज नमाज अदा करते हैं तो साथ साथ नवाफल का भी एहतमाम किया जाए। जहां जहां पर फराइज है उनके साथ साथ अल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा नफलों की पाबंदी करता है ऐसी पाबंदी कर करके वो मेरा महबूब बन जाता है, मैं उनके साथ मोहब्बत करनी शुरू कर देता हूँ। तो अगर रब के महबूब बनना है, रब का प्यारा बनना है, तो नफलों की पाबंदी करें, नफलों की कसरत के साथ नवाफल भी पढ़ा करें। अल्लाह हमें इसके लिए तौफीक अता फरमाए। चौथा जी जरूरी काम जो इन 10 दिनों में हमें करना चाहिए, हमें जरूरी है, और इन दिनों की खास वो इबादत है। चले नमाज जो है ना, ये तकबीरात या जिक्र अज़कार वो बाकी दिनों के अंदर भी हम करते हैं, लेकिन अब ये जो मैं चौथा काम करने लगा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दिनों में होता है। वो है जी हज बैतुल्लाह, अल्लाह के घर की जियारत करना, रब के घर का तवाफ करना और हज करना। दुआ करें जी अल्लाह ताला हमें हर साल इसकी तौफीक अता फरमाए। मुसब्बिबुल असबाब जी रब की ज़ात है। ठीक है, दुनिया जो ना असबाब के साथ जुड़ी हुई है, हमने असबाब भी इख्तियार करने हैं, लेकिन असबाब के साथ साथ मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर भी हमारी नजर होनी चाहिए कि यार अभी असी तरफ से दिखा सकने, दुआ से कर सकते, हाथ से चुक सकते रब से सामने के नहीं। यार अभी हाथ असी चुक ले, दुआ असी कर ली, अल्लाह तड़प असी दिखा देती है, अगला हर कर्म अल्लाह तू कर दे, कोई सबब बना दे अल्लाह। असी भी हाथ देते जाइए और तेरे घर की जियारत करिए, तवाफ करिए, ज़म-ज़म रज रज पिए। अरब ये घर जो कोई मुश्किल है जी। कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके कोई उम्मीद ही नहीं थी उम्र और आज पे जाने थी, रब ने ऐसे असबाब बनाए वो आज भी कर रहे, उम्र भी कर रहे।
تو اس لیے جہاں پر اسباب کو ہم نے اختیار کرنا ہے وہاں پر مسبب الاسباب کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. مسبب الاسباب کے سامنے بھی ہم نے جو ہے نا اپنی آرزویں، اپنی تڑپ اور اپنی دعائیں وہ رب کے سامنے کرنی ہے. اچھا اس کے اندر جی توجہ کیجیے گا. اب امیر بندہ تو چلو چلا جائے گا حج پہ، اس کے پاس پیسے ہو گئے، اسباب اختیار کرے گا، اللہ قبول کرے گا، حج پہ چلا جائے گا. لیکن جو ہمارے جیسے آپ جیسے جو غریب ہیں اور جو حج پہ بھی نہیں جا سکتے، لیکن جو ہے نا اب میں 3 اعمال آپ کے سامنے ایسے کرنے لگا ہوں کہ آپ وہاں پر حج پہ جائے بغیر یہاں پر رہتے ہوئے حج کا اور مکمل مقبول حج کا ثواب لے سکتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ کے ساتھ سنیے گا جی. جو امیر ہے وہ تو چلو حج کر آئے گا، وہ تو چلا جائے گا، لیکن جو ہمارے جیسا غریب ہے اور حج کا ثواب لینا چاہتا ہے اس کے لیے میں 3 اعمال آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. سب سے پہلا عمل جی، اگر حج پہ نہیں جا سکتے، حج کا اجر لینا چاہتے ہیں، حج کا ثواب لینا چاہتے ہیں، وہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے 1782 اس حدیث کا نمبر 1782. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے، رمضان المبارک میں جو بندہ عمرہ کرتا ہے اس رمضان کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب ایسے ہی ہے جیسا کہ حج کرنے کا ثواب ہے. اور حج بھی کوئی عام چھوٹا حج نہیں بلکہ وہ حج جو کہ رسول اللہ کے ساتھ کیا ہو. اس لیے رب سے دعا کیا کرے یا اللہ روزے میں رمضان المبارک میں یا اللہ ہمیں عمرہ کروا دے. تو حج اگر جا سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر حج پہ نہیں جا سکتے اور جتنا سرمایہ نہیں ہے تو کم از کم یہ کوشش لازمی کریں کہ رمضان المبارک میں رب کے گھر کی زیارت کے لیے عمرے کے لیے جائیں. عمرہ کریں گے ثواب کس کا ملے گا جی؟ مقبول حج کا. آپ کہیں گے پھر پیسے، سانو تو کوئی ایسا عمل دسو کوئی پیسہ نہ ساڑا لگے لیکن حج کا ثواب مل جائے. لو جی آپ آگے 2 عمل جو بتانے لگا ہوں نا اس میں آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا، 1 پیسہ بھی نہیں آپ کا لگے گا، لیکن ثواب جو ہے نا اجر یہ مکمل پورے کے پورے حج کا ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں 586 اس حدیث کا نمبر ہے. جامع ترمذی 586. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز پڑھ لیجیے جماعت نا، فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے پھر اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے. جو ہی اشراق کا وقت ہوا اس وقت اس نے اٹھ کر جو ہے نا 2 نفل پڑھ لیے. جو جی محبوب کی طرف سے گارنٹی ہے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اس کو تام مکمل مقبول حج کا ثواب اس کو مل گیا. وہ کھانے کو پیسہ لگتا ہے یہ کوئی پیسہ نہیں ہے یہاں پر، لیکن یہ کہ یہ ہم چھوٹا سا عمل کر کے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، یہ چھوٹا سا عمل کر کے ہم روزانہ ایک مقبول حج کا ثواب لے سکتے ہیں. تو کام از کم ان 10 دینا جو تھے لازمی کرو جی. ان 10 دنوں میں تو جہاں پر حج ہو رہا ہے وہ حج کے لیے وہ تو جا رہے ہیں، لیکن کیوں نہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے ہم بھی حج کے ثواب میں شریک ہو جائیں. آئیے یہ تیسرا عمل مجمع الزوائد کی حدیث ہے 499 حدیث کا نمبر ہے اور یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد محدثین فرماتے ہیں رجالہم کلہم ثقات. اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں، یعنی حدیث بالکل ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ارشاد گرامی محبوب فرماتے ہیں من غدا الی المسجد، جو صبح سویرے اپنی نیند چھڑ کے بستر چھڑ کے اور نیرے دے وچ صبح جو ہے نا مسجد میں گیا، لا یرید ان یتعلم خیرا، اس کا ارادہ، اس کی نیت، اس کا ذہن صرف اور صرف یہ تھا کہ میں وہاں پر جا کر نا دین سیکھوں گا. جس طرح آپ نے فجر کا درس ہوتا کہ نہیں قرآن کریم کا، آپ کا قرآن کا درس صحیح تھا، قرآن کریم کا جو ہے نا تعلیم ہوتی ہے یہاں پر. آپ لوگ ماشاءاللہ ذوق شوق کے ساتھ آتے ہیں، جو نہیں آتے حضرات ان کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ یار فجر کا درس ہوتا ہے یہاں پر، تو لازمی سے تشریف لائیں. دیکھیں کتنی عظمت والی حدیث ہے. اور جو بچے پڑھنے والے آتے ہیں یہ تو حدیث بالکل 100% ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں من غدا الی المسجد، جو بندہ صبح فجر کی نماز پڑھنے واسطے مسجد سے گھر سے نکل ہے مسجد کی طرف جا رہا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا، اس کا ارادہ، اس کا ذہن صرف اور صرف یہ ہے کہ میں وہاں پر جا کر دین کی کوئی بات سیکھوں گا، دین کی جو ہے نا تعلیم حاصل کروں گا. او یعلمہ، یا پھر یہ کہ بندہ دین سکھانے واسطے، کوئی ساڑھے ورگا کوئی امام خطیب ہے، کوئی مدرس ہے، وہ دین سکھانے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے. یعنی دونوں، یا تو بندہ دین سیکھنے کے لیے، تعلیم لینے کے لیے، یا تعلیم دینے کے لیے جو ہے نا وہ مسجد میں آ رہا ہے. محبوب فرماتے ہیں توجہ، کان لہ کاجر حاج، اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا کہ حج کرنے والے حاجی کو ملتا ہے. اور پھر وہ حاجی کون سا؟ تامن حجتہ، جس کا حج مکمل ہو کر رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے. وہ کہا جی چونکہ پیسہ لگتا ہے، کوئی پیسہ لگتا ہے دسو،
कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई फ्री है। सिर्फ यह कि आपने सुबह को मस्जिद के अंदर आना है नमाज पढ़ने की नीयत से, और जहाँ पर दरस होता है, कुरान सिखाया जाता है, कुरान की तालीम की जाती है, कुरान का तर्जुमा और तफसीर सिखाई और बताई जाती है। आपने नीयत ये रखनी, यार असी उत्थे जाकर रब दी नमाज पढ़नी है, रब के सामने झुकना है, और जो वहां पर दरस कुरान होगा, कुरान हम सीखने के लिए जा रहे हैं। लो जी आप आए हैं, नमाज भी अदा होगी और मुकम्मल मकबूल हज का सवाब आपके नामा ईमान में लिखा जा चुके हैं। तो इसलिए जी ये छोटे छोटे अमाल हैं, इनको लाजमी से शौक के साथ, ज़ौक़ के साथ किया करें। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, किसी बंदे को खाली नहीं छोड़ता। देखिए जो बंदा अमीर है वो तो चलो हज कर आएगा, लेकिन जो बंदा गरीब है और हज की तरफ उसके दिल में है, उसके लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के महबूब ने ये हमारे इंतजाम किए हुए कि ये अमल करो, हज का पूरा पूरा सवाब लो। अगर रसूलुल्लाह के मुबारक ज़माने में हम होते तो हम अल्लाह के महबूब को पैरों में गिर कर और जो है ना बड़े अदब एहतराम के साथ ये अर्ज करते, महबूब आप तो शफीउल मुज़निबीन है, आपको क़यामत वाले दिन शफाअत करेंगे लोगों की, या महबूब सानू याद रखो, सानू भुलियो ना, कहना सी कि नहीं जी। लेकिन आप अल्लाह के महबूब अल्लाह की जन्नतों में है, दुनिया में यहाँ पर नहीं है, लेकिन अल्लाह के महबूब ने सानू तो लावारस नहीं छोड़े। अल्लाह के महबूब में बताकर गए हैं, जो बंदा अजान सुने और जिस तरह मुअज्जिन जो है ना कलिमात कह रहा है ना, उस अजान का जवाब दे, अजान के जवाब देने के बाद दुरूशी पढ़े। कौन सा दुरूशीफ जी, जरा खुद बनावटी, जरा खुद बनाया होया नहीं, वो दुरूशीफ जो महबूब ने हमें सिखाया, वो दुरूशीफ कौन सा है जी? दुरूद इब्राहिमी। महबूब क्या फरमाते हैं जी, तो जो अजान का जवाब दे, अजान का जवाब देने के बाद फिर दुरूद पढ़े, दुरूद इब्राहिमी। फिर दुरूद पढ़ने के बाद जो है ना, वो सिर्फ बंदा ये दुआ पढ़ ले, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लामी दीना, कि अल्लाह ने तेरे रब होने ते राजी है, इस्लाम दे दीन होने ते राजी है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नबी होने ते राजी है। महबूब फरमाते हैं जो हर नमाज अजान के वक्त बंदा कर लेता है, सही बुखारी सही मुस्लिम के अल्फाज है, वाजबत लहू शफाअती, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। देखो जी महबूब ने छोटे नहीं है गापन, ये नहीं कि हम महबूब रह गए, ये है कि सहाबा इकराम के जमाने में होते तो हम महबूब के सामने अर्ज करते, लेकिन आप महबूब तो नहीं है, लेकिन आप हर अजान का जवाब दे के ते नाल दुरूद पढ़ के, जो कि नबी ने सिखाया हुआ, उस बाद दुआ पढ़ के वाजबत लहू शफाअत, शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाती है। तो इसलिए जी इस चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें जिनका एहतमाम लाजमी किया करें। आगे पांचवी चीज़ जो कि इन दिनों को हमने कीमती बनाते हुए करनी, पांचों अमल, वो है जी यौमुल अरफा, 9 जुल हज का दिन। 9 जुल हज का दिन जी, अल्लाह अकबर, क्या बात है जी। सही मुस्लिम की हदीस है 3288, 3288 हदीस का नंबर है। अल्लाह के महबूब इमाम कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक सबसे जो प्यार आता है ना अल्लाह को अपने बंदों पर, अल्लाह को अपने बंदे जो सारे तो प्यारे लगते, वो आही दिन 9 जुल हज का दिन है, जब अमीर ने, गरीब ने, बादशाह ने, फकीर ने, और एक पंजाबी बोलने वाला, कोई पश्तो बोलने वाला, कोई जिसी भी जुबान का मालिक है, किसी भी जुबान का बोलने वाला है, किसी भी इलाके का रहने वाला है, वो सारे के सारे सफेद लिबास पहनकर, बगैर सिला हुआ फकीरों वाला लिबास पहनकर वो रब की बारगाह में आकर जो है ना रब के तराने पढ़ रहे, और रब के लिए जो है खुले मैदान के अंदर अपने बंगले मोहल्ले मोहल्लात छोड़कर रब की बारगाह में आकर बैठते हैं ना। तो हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है कि महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार उसी दिन उन्हीं लोगों पर आता है। और आला युबाही है फिर मलाइका, हदीस के अल्फाज है, अल्लाह अपने फरिश्तों में फख्र महसूस करता है कि फरिश्ते तुसी ते कहने से इन्होंने जाके लड़ाइयां करनियां, इन्होंने जाके जो है ना जमीन में दंगा फसाद करना, देख मेरे बंदे, देखो मेरे बंदे आज जो है ना वो तौहीद के तराने गा रहे हैं, उनके जुबानों के ऊपर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक के तराने। तो अल्लाह अपने बंदों के ऊपर फख्र करता है। और जब रब को प्यार आए, रब को बंदे प्यार आवे, और तुहानू भी जो अपने किसी होर से प्यार आवे तो बंदा इनाम देता कि नहीं, गिफ्ट देता कि नहीं। और रब जब बंदों के साथ प्यार करे ना तो रब भी फिर गिफ्ट देता है। रब का गिफ्ट क्या है जी, महबूब फरमाते हैं फिर अल्लाह उस दिन जो है ना सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। ये 9 जुल हज जरा के मंगल वाले दिन आ रहे हैं, मंगल वाला दिन जी बहुत अहमियत का अमल है, बहुत ज्यादा उसकी फजीलत है, बहुत ज्यादा उसकी बरकत है कि उस दिन जो है ना रब अपनी मखलूकात में सबसे ज्यादा अपनी मखलूक लोगों को, इंसानों को जहन्नम से आजाद करते हैं। तो जो हाजते चले गए, चलो उन्होंने तो जो है ना रब को मना लिया, वो हम कैसे रब को मना सकते हैं, हम उस दिन को कैसे, कौन सी हालत अपनाएंगे तो रब राजी हो जाएगा। महबूब ने फरमाया जी, सही मुस्लिम की हदीस है 2747 हदीस का नंबर है कि महबूब ने फरमाया यौमुल अरफा 9 जुल हज का रोजा ये 2 साल के गुनाहों का कफारा है। कि यानी जिसने 9 जुल हज को रोजा रखा तो उसके 1 साल पिछले और 1 साल जो आइंदा आने वाला उस गुनाह के यानी एडवांस ही गुनाह रब उहदे माफ कर देता। तो इसलिए इस दिन नूं जी जाया नहीं करना आपा। मंगलवार दिन आ रहा है, मंगलवार दिन सारे साडे भरा और मुसलमान अफराद ये इस दिन को जाया ना करें। इस दिन क्या करना जी,
रोज़ा रख रहे हैं, इस दिन को ज़ाया नहीं करना। यौमुल अरफा का यही एक इबादत है। या तो इंसान हज पे चला गया, चलो वो तो हज के अमाल में मशगूल होगा, लेकिन जो यहाँ पर है जो हज नहीं करने के लिए गया वो बाकी तो अमाल साथ करे, नमाज रोजे की पाबंदी तो करे, नमाज और बाकी जिक्र अज़कार तिलावत की पाबंदी तो लाज़मी करेगा, लेकिन इस दिन की खास जो इबादत है जिसका अल्लाह ने और अल्लाह के महबूब ने तकादा की वो रोजे का है। तो इस दिन लाजमी से मंगलवार दिन आ रहा है जी, वो लाजमी से रोजे का एहतमाम कीजिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आइए जी आगे छठा और आखिरी अमल जो इस दिन इस अशरा जुल हज्जा की जीनत है, जो इन दिनों का माथे का झूमर है, वह है जी यौमुन नहर, 10 जुल हज यानी ईद वाला दिन, कुर्बानी का दिन। और सुनन इब्न माजा की हदीस है कि अल्लाह के जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह के नज़दीक 10 जुल हज को यानी ईद वाले दिन सबसे प्यारा और सबसे महबूब अमल अल्लाह को यह है कि जानवर को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना, कुर्बानी करना, अल्लाह के रास्ते में खून बहाना, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब तरीन अमल 10 जुल हज का है। तो इस 10 जुल हज के और कुर्बानी का क्या अजर है, क्या सवाब है, क्या हमें अजर मिलने वाला है। सुनन इब्न माजा की हदीस है जी, 3127 हदीस का नंबर है कि जिसमें यह है कि सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह से कुर्बानी कर दे, ए कुर्बानी का अजर सानू की मिलता है, ये कुर्बानी जो हम जानवर को कुर्बान करते हैं हमें इसका अजर सवाब वो बदला हमें क्या मिलता है ये तो बताएं। तो महबूब ने फरमाया जी बिकुल्लि शअरातिन हसना, हर बाल के बदले में एक नेकी है। तो जी भरे बालों वाला, जितना ज्यादा घने बालों वाला जानवर होगा उतनी ही ज्यादा नेकी है। और सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह किसी जानवर के बाल नहीं होंगे, ऊन होंदी जिस तरह भेड़ दुम्बा इसकी ऊन होती है। तो महबूब ने फरमाया उस ऊन के जितने रेशे हैं वो आप ही नहीं गिन सकते, किसी कंप्यूटर वाली मशीन के ऊपर लगा दे क्या नहीं कितने रेशे वो भी नहीं बता सकेगा, सारे कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे। लेकिन रब के इल्म में तो है ना कि इस जानवर के जिस्म के ऊपर कितने बाल हैं, इसकी ऊन के अंदर कितने रेशे हैं, हर रेशे के बदले में, हर बाल के बदले में एक नेकी आपके नामाए माल में लिख दी जाती है। यह कुर्बानी का अजर है। इस तरह दूसरी हदीस जामे तिरमिज़ी 1493 हदीस का नंबर है। इस हदीस में जी 3 चीजें बयान की गई। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 जुल हज को यानी ईद वाले दिन अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल, अल्लाह को सब तो प्यारा जरा अमल लगता है वो यही है कि जानवर का खून बहाया जाए, यानी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी की जाए। फिर महबूब ने फरमाया कि जिसने जो जानवर कुर्बान किया होगा, यानी किसी ने बकरा किया है, किसी के पास ज्यादा अल्लाह ने वसअत दी थी उसने गाय की है, और किसी के पास अल्लाह ने ज्यादा वसअत दी थी, माल ज्यादा दिया था अल्लाह ने, उसने ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया है। महबूब फरमाते कि वो जानवर जो उसने कुर्बानी की होगी वो जानवर अपने पंजों समेत, अपने जो है ना सींगों समेत, अपने बालों समेत और जो है ना अपनी तमाम आज़ा, अपने खुरों समेत वो आएगा और अल्लाह के नामा अमाल में मिजान के अंदर जहां पर इंसान के सवाब और नेकियां तुल रही होंगी ना, उस जानवर को भी उसके नामा अमाल में तोला जाएगा, उसका भी वजन किया जाएगा। तो जितना मोटा तुसी जी ऊंट करोगे, जितना मोटी गाय करोगे उतना ही नामा अमाल अपना बढ़ रहे। और उसके बाद महबूब ने फरमाया जी पता नहीं यार सारी पता नहीं कुर्बानी कबूल हुई है कि नहीं, पता नहीं यार की बनना। और महबूब ने आपको गारंटी दी है, महबूब फरमाते हैं कि कुर्बानी के जानवर का खून गिरने से पहले पहले अल्लाह मुसलमान की कुर्बानी को कबूल कर लेते हैं। लेकिन नीयत मुखलिस होनी चाहिए, नीयत खालिस होनी चाहिए, नीयत रब को राजी करने की होनी चाहिए। नीयत अगर मुखलिस है, नीयत खालिस है तो रब के महबूब की तरफ से सच्ची जुबान से मायंती को अनिल हवा वाली जुबान से ये गारंटी है मुझे और आपको कि आपकी जानवर की कुर्बानी का खून नीचे गिरने से पहले पहले वो कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जी